Hello, good morning, FIBCom students. Am I audible? Good morning, ma'am. Good morning. Yes, Good ma'am. morning. Good morning. Yes. Good morning. So, day before yesterday, we were talking about the fair shows and exhibitions. This was the last point. Now we will discuss. Go ahead. That next point is sponsoring culture and sport. A company can build a favorable image of itself in the eyes of public by patronizing sporting and cultural events. This usually takes the form of sponsoring events and awarding scholarship and prizes. So, in company also, in organization also, they are also give the importance to the culture and the sports. What we can say, culture and the sports document or department, because that every person coming from the different culture, and they are also organizing that sporting and cultural events in their offices. That next point is public service films, that companies are increasingly taking to making their own films in order to educate their workers and outside the public. Such films are notoriously dull in our country and hence serve no purpose. Telling a story, cartoons, use of colors, imaginative direction help to make public services film interesting. So whenever we are talking about the film, that we most probably see the violence, actions, romance, love, and the background like this. But when the companies they are organizing or they are organizing their own film, so at that time they are the main aim of that making film is to educate their workers and outside the public. So first of all, they once they are telling a story or cartoons or use of colors and imaginative direction, which help them to educate their workers. Do you understand? हाँ या ना? समझ में आया? हेलो, Yes, ma'am. am I audible now? समझ में आया या और फिर से? Next, Yes, ma'am. the next point is conferences and seminars. Large companies can offer the host the national and the international level international conferences and seminars of the professional scientists, researchers, and others in an effort to establish the understanding and forge links with the other organizations. Inadequate press, radio, and television publicity is given to the conferences. It could achieve the double objective of carrying organizing masses, organizations masses, this means, to larger public and establishing link with the other organization. So that means conferences and seminars. So here that company also organizing the conferences and seminars at the national level and international level. When they are organizing that conferences and seminars, they invite the researchers, scientists, professionals, and other persons, other resource persons, so at least they can make them aware or they can educate their workers also, they can educate their employees also, and with the help of communication equipment, they are just giving that more link or to establish the link with the other organization, as we did in the last month. If for example that the link, whenever the webinar is going to be organized by the college, it is not going to send only in the FY students, but it is also going to be sent in the SY, TY, and other what we can say that the other organizations. Do you understand? Other department also. Do you understand? हाँ या ना? कि फिर से No, समझ ma'am. फिर से Yes, बताइए. ma'am. कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स की हम बात करते हैं, तो कंपनी में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स दिए जाते हैं कि जहाँ पे हम बोलते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में या नेशनल मार्केट में क्या हो रहा है, वर्ल्ड में क्या चल रहा है, या उसको अवेयर करने के लिए अपनी कंपनी को हम बोलते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करने के लिए ये सेमिनार रखे जाते हैं. तो जब हम सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं, तो उसमें कंपनी साइंटिस्ट, बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं या रिसर्चर्स है या प्रोफेशनल जो
हम बोलते हैं एक्सपर्ट्स हैं उनको बुलाते हैं, जिसकी वजह से वो जहाँ पे एम्प्लॉय, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय काम करते हैं तो उनको काम करने का तरीका कैसा होना चाहिए, या उनका कुछ स्पेस ऐसा हो कि जहाँ से वो मोटिवेट हो सके। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हाँ या ना? हेलो, डू अंडरस्टैंड और नॉट? Yes, ma'am. ओके, कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे लास्ट मंथ में हमारे कॉलेज में जैसे वेबिनार अटेंड हुए थे, आपने अटेंड भी किए होंगे शायद बहुत बच्चों ने। तो सिर्फ आपके एफवाई के ग्रुप में नहीं भेजा जाता है, एसवाई के ग्रुप में भी, टीवाई के ग्रुप में भी, बाकी के जो हम बोलते हैं कि बीएससी के जो स्टूडेंट है उनको भी भेजा जाता है। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को उसका बेनिफिट मिल सके, इसकी वजह से वेबिनार और सेमिनार अटेंड किए जाते हैं या लगाए जाते हैं। डू यू अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. Okay. Then next point is through media relation. अभी through media relation मतलब क्या? Media relations are the most important aspect of practice of PR. The role PR person is able to handle inquiries, providing information and discussing the background to the particular development. The PR functions knows exactly who particular journalist will find of the interest. तो जहाँ मीडिया की बात करते हैं तो मीडिया इज ऑल्सो प्लेइंग द इम्पोर्टेंट रोल बिकॉज दैट पीआर पर्सन मीन्स पब्लिक रिलेशन पीआर पर्सन इज एबल टू हैंडल द इंक्वायरी। और इंक्वायरीज करने के लिए हम बोलते हैं कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए या पर्टिकुलर डेवलपमेंट या हम बोलते हैं कि कोई प्रोजेक्ट चल रहा है कंपनी में तो उसको डिस्कस करने के लिए उसका बैकग्राउंड प्रिपेरेशन करने के लिए पीआर किसकी मदद लेता है? मीडिया की मदद लेता है। द पीआर फंक्शंस नोज एग्जैक्टली व्हिच पर्टिकुलर जर्नलिस्ट विल फाइंड ऑन द इंटरेस्ट। कि जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉय काम करते हैं तो उसकी वजह से क्या पता चल कि फॉर एग्जांपल उसमें ये पता चलता है कि हाँ बाबा अभी किसी को जर्नलिस्ट पर्टिकुलर टॉपिक पे जर्नलिस्ट को क्या भेजना है और क्या नहीं भेजना है, मीन्स कौन सी इंफॉर्मेशन भेजनी है और कौन सी इंफॉर्मेशन नहीं भेजनी है। समझा? डू यू अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। Yes, ma'am. अंबर, रीड द नेक्स्ट पैसेज। अंबर जोशी, अंबर जोशी, रीड द नेक्स्ट पैसेज। आर यू हियर? अंबर, इकरा, इकरा कोकाटे, रीड द नेक्स्ट पैसेज। Okay. Then next point is praise. A full page advertisement in the newspaper does not have so much effect as a short newspaper report. This is because people are naturally suspicious advertisement but accept or expect objective analysis from the reporter. That how to get the such report based on the truth of course published is one of the foremost tasks of efficient पब्लिक रिलेशन मैन। तो हम यहाँ पे जब हम पीआर मैन की बात करते हैं या हम बोलते हैं कि पीआर मैन जो होता है वो इंक्वायरी हो या हम बोलते हैं कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना हो या उसको किस तरह से हैंडल करना है या पर्टिकुलर डेवलपमेंट पे जो प्रोजेक्ट चल रहा है पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे डेवलपमेंट चल रहा है तो उसकी वजह से क्या डिस्कस करना है या क्या डिस्कस नहीं करना है वो मीडिया को इंफॉर्मेशन देता है। तो मीडिया मीन्स फॉर एग्जाम्पल मोस्ट प्रोबेबली वी सी इन द न्यूज़पेपर दैट बिग एडवर्टाइजमेंट। देखते हैं कि नहीं देखते हैं? हाँ या ना? हम न्यूज़पेपर में बड़ी बड़ी एडवर्टाइजमेंट देखते हैं कि नहीं Yes. देखते हैं? Yes, ma'am. हाँ, Yes, लेकिन ma'am. कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत बड़ी एडवर्टाइजमेंट होने के बावजूद भी हमें इतना Yes, इंटरेस्ट ma'am. नहीं होता है या न्यूज़पेपर वाले या न्यूज़ रिपोर्टर वाले उतना मीन्स जितना शॉर्ट या इफेक्टिव होता है एडवर्टाइजमेंट उतना वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। शॉर्ट होता है, स्मॉल होता है तो ज़्यादा कि जितना बड़ा एडवर्टाइजमेंट देंगे मीन्स पेज भर भर के तो नो वन इज रेडी टू रीड इट। कि फॉर एग्जाम्पल हमारे व्हाट्सएप की बात करते हैं कि व्हाट्सएप में कितना भी इम्पोर्टेंट मैसेज हमारा आया हो अगर वो लंबा मैसेज हो तो डू वी लाइक टू रीड इट? कैन वी स्पेंड 10 minutes ऑन इट? यस और नो?
यस और नो? हेलो, Yes, ma'am. कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको क्या बताया कि जैसे मोबाइल या व्हाट्सएप में कि जितना छोटा मैसेजेस होता है वो जल्दी से हम लोग पढ़ लेते हैं ना, हाँ या ना? Yes, ma'am. हाँ, Yes, ma'am. वैसे ही मैं बता रही हूँ कि जैसे बड़े बड़े लंबे मैसेज हो तो कितना भी इम्पोर्टेंट मैसेज हो, बट डू वी लाइक टू रीड इट? हमें पढ़ना पसंद है इतना No, बड़ा ma'am. बड़ा? No, ma'am. नहीं नहीं, क्यों? क्यों? इम्पोर्टेंट हो तो भी No, हम ma'am. पढ़ना पसंद नहीं करते, क्यों? क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें लंबा लंबा पढ़ना वो पसंद है। बड़ा मैसेज होता है बड़ा इसलिए। मैसेज होता है, हाँ बड़ा मैसेज होता है इसलिए। तो this is because people naturally suspicious advertisement and expect objective analysis from the reporter. तो रिपोर्टर जब भी न्यूज़पेपर में जब भी रिपोर्ट देता है या हम बोलते हैं कि उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो वो हम बोलते हैं कि पीपल एक्सपेक्ट करते हैं। देन कि फॉर एग्जांपल जो ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं तो वो हम बोलते हैं कि रिलेटेड टू ट्रूथ, रिलेटेड टू कोर्स। कि फॉर एग्जांपल आप ग्रेजुएट हुए, आप एमबीए हुए, तो फॉर एग्जांपल एमबीए के लिए या कोई पर्टिकुलर सीट खाली है, कोई कंपनी में सीट खाली है एमबीए के लिए नहीं, लेकिन कंपनी में कोई पर्टिकुलर सीट खाली है, तो वहां पे अप्लाई करने के लिए आपको उस पर्टिकुलर कंपनी का हम बोलते हैं कि एड्रेस है या कौन सी पोस्ट निकली है, ये ऑब्जेक्टिव वहां पे होने चाहिए। अंडरस्टैंड? ये ऑब्जेक्टिव वहां पे होने Yes, ma'am. चाहिए रिपोर्ट में, यस ना मैम। कि बड़ा बड़ा कंपनी का बैकग्राउंड होना चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? डू यू गेट इट? Yes, ma'am. कि Yes, ma'am. कंपनी कब स्टार्ट Yes, ma'am. हुई, कंपनी कब कितने लोग काम कर रहे हैं, वो नहीं जरूरी है, पर जरूरी क्या है कि कंपनी को स्टार्ट करने के लिए कि वहां पे या फॉर एग्जाम्पल पर्टिकुलर पोस्ट के लिए आप जितना एडवर्टाइजमेंट शॉर्ट और अच्छा देते हैं वो कितना होता है, इफेक्टिव होता है। The next point is, for example, he could invite the foreign dignitary to visit the factory and then call the journalist to cover visit photograph of the dignity in the factory would be the best for the publicity purposes. अभी यहाँ पे क्या हो सकता है कि फॉर एग्जांपल जो हम बोलते हैं कि जो पीआर पर्सन है तो वो क्या कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल फॉरेन डिग्निटरी या फॉरेन हम बोलते हैं कि विजिटर को उनको इनवाइट करते हैं कि जैसे हमने पिछली बार एक पॉइंट देखा था कि कोई कंपनी में कोई भी विजिट ले सकता है जिसकी वजह से उसकी पब्लिसिटी बढ़ती है मार्केट में। तो ऐसे फॉरेन डिग्निटी वाले वहाँ पे फैक्ट्री में विजिट करते हैं और जो बोलते हैं कि जर्नलिस्ट को भी बुलाते हैं, फोटोग्राफ्स लिया जाता है, जिसकी वजह से एक कंपनी का इमेज मार्केट में एक अच्छी तरीके से खड़ा होता है। समझ में आया? समझ में आया? हाँ Yes, या ma'am. ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, जिसको हम बोलते हैं इन द अदर वर्ड्स वी कैन से दैट showmanship, that not only must PR man keep goes relation with the newspaper, but he should also cultivate such relation with the business press. There are magazines and journals for the businessman and also specialized journals dealing with the section of business like textile, foreign trade and transport. He should see that the organization gets good coverage in these journals. And besides this, he should also ensure the directors, scientists, others from his organization contribute his articles to these journals. तो दिस जर्नल, तो यहाँ पे जैसे जर्नल्स आपको पता नहीं होगा, जर्नल्स पता है आपने कभी देखा है? हैव यू सीन जर्नल्स, बिजनेसमैन जर्नल्स? हैव यू सीन इट? No, ma'am. नहीं। No, नो ma'am. मैम। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हम बोलते हैं कि आपको ये पता होगा कि शायद आप फॉर एग्जांपल जैसे जर्नल्स कैसे होते हैं कि पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या कोई बड़ा बिजनेसमैन है या फॉर एग्जांपल टाटा है या अंबानी है या रिलायंस है वगैरह वगैरह वगैरह, उनकी जर्नल्स निकलती है। समझ में आया? उन्होंने क्या काम किया या क्या उनके रिलेशन है या उनके बारे में इनके इंफॉर्मेशन को जर्नल्स में प्रिंट आउट किया जाता है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. कि फॉर एग्जांपल जैसे ma'am. बॉलीवुड एक्ट्रेस और एक्ट्रेस की होती है, समझ अभी अभी आया होगा थोड़ा सा आइडिया? हाँ या ना? हाँ या ना? Yes, जैसे ma'am. फ्रंट कवरेज Yes, उसका ma'am. अलग होता है, उसका जो Yes, पेजेस ma'am. होता है वो जैसा हम बोलते हैं कि जैसे नॉर्मल पेपर जैसा नहीं होता है, थोड़ा सा सिल्की होता है, जैसे आपने जर्नल्स देखी होगी।
जर्नल्स देखी होगी या आपने नहीं देखी Yes, होगी ma'am. तो फॉर एग्जांपल आपको थोड़ा बहुत आइडिया आया होगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं आपको ये जर्नल जरूर दिखाऊंगी जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा आइडिया आए कि हाँ इसमें क्या होता है। तो क्या होता है कि फॉर एग्जांपल जो पीआर होता है, पब्लिक रिलेशन, हम लोग बोलते हैं कि तो जो प्रेजेंट करने वाला होता है, तो उसको प्रेस के साथ भी, बिजनेस प्रेस के साथ भी संबंध बनाए रखने हैं। और उसको हम बोलते हैं कि उसके साथ जब जर्नल्स वो देता है कुछ लिखने के लिए, तो वो उसके लिए हम बोलते हैं कि कंपनी के अलावा दूसरे जो साइंटिस्ट होते हैं या डायरेक्टर्स होते हैं या हम बोलते हैं कि अदर जो कंट्रीब्यूटर्स होते हैं, उनके भी आर्टिकल्स उसको देने पड़ते हैं जर्नलिस्ट के पास। समझ में आ रहे हैं? समझ में आ रहे हैं? हाँ या ना? Yes, ma'am. की फॉर Yes, एक्झाम्पल ma'am. सिंपल से आपको एक एक्झाम्पल देऊ, तो गृहशोभा हे सगळ्यांचं कदाचित तुम्ही तुमच्या घरी सुद्धा बघितलं असेल. गृहशोभा आधी हे यायचं पुस्तक, माहिती आहे ना? हो की नाही? हो की नाही? गृहशोभा हे पुस्तक बघितलंय? हिंदी में भी आता है, मराठी में, रीजनल लैंग्वेज में अवेलेबल होता है, हाँ या ना? Yes, ma'am. हाँ, तो Yes, उसमें डिफरेंट टाइप के टॉपिक्स आपको देखने को मिलते हैं। मैं आपको सिंपल से एग्जांपल देती हूँ कि डिफरेंट टाइप के टॉपिक्स, वहाँ पे स्टोरी होता है, फिर हम बोलते हैं कि रेसिपीज का होता है, फिर बोलते हैं कि जो हम बोलते हैं हेल्थ के रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं वो डिस्कस किया जाता है, या हम बोलते हैं कि सोसाइटी में जो चल रहा है वो पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पे डिस्कशन किया जाता है, वहाँ पे वो आर्टिकल प्रिंट किया जाता है, प्रेस किया जाता है। और लास्ट में जैसे हम बोलते हैं कि लास्ट में एक पेज होता है जहाँ पे बॉलीवुड एक्टर्स और बॉलीवुड एक्ट्रेसेस का आपको दिया जाता है, या क्रिकेटर के बारे में बताया जाता है, या हम बोलते हैं कि पर्टिकुलर टीम प्लेयर के बारे में बताया जाता है। तो ये क्या है कि ये एक वन काइंड ऑफ जर्नल, या जर्नल्स उसको नहीं बोलते, ये तो बुक है, लेकिन जो जर्नल्स होते हैं मोस्ट प्रोबेबली बेस्ड ऑन दैट टेक्सटाइल, दैट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड ट्रांसपोर्ट, इस पे डिपेंड होता है। और उसमें जो हम बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल मार्केट में बताया गया है, या हम बोलते हैं कि उसके मालिक क्या कर रहे हैं, या हम बोलते हैं कि उसके दूसरों लोगों के साथ संबंध कैसे है, वगैरह वगैरह वगैरह, उसके बारे में इंफॉर्मेशन बताया जाता है। और हम बोलते हैं कि जो रिसर्चर्स है या साइंटिस्ट है या अदर कंट्रीब्यूटर्स है, उनसे भी आर्टिकल्स वहाँ पे छापे जाते हैं। समझ में आया? समझ में yes, आया? ma'am. ओके, Yes, ma'am. देन नेक्स्ट पॉइंट इज नेक्स्ट पॉइंट इज देखिए, an event of public interest would be sufficient reason to call for a press conference. At press conference, journalists are invited to assemble and ask the questions which are usually replied by spokesperson on behalf of the organization. Care should be taken to see that the confidential or controversial matter are not discussed. तो जब भी जर्नलिस्ट को बुलाया जाता है, या फॉर एग्जांपल प्रेस वालों को बुलाया जाता है, या जब हम अपनी कंपनी का कोई आर्टिकल्स प्रिंट आउट करने के लिए बुलाया जाता है, तो वहाँ पे या हम बोलते हैं कि पर्टिकुलर टॉपिक ऐसे नहीं डिस्कस करने चाहिए कि जिसकी वजह से कंट्रोवर्शियल मैटर्स या कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाए। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हाँ या ना? डू यू अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. No, Yes. ma'am. नो। No, ma'am. For example, you assume that you are PR, means public public relations speaker, spokesman. You are spokesman. Okay. You are representing something. You are giving something article about your organization to that journalist. Journalist आपको पता है? जर्नलिस्ट पता है कि नहीं पता है? Yes, प्रेस ma'am. वाले पता है कि जैसे Yes, फॉर ma'am. एग्जांपल Yes, किस ma'am. तरह Yes, से Yes, क्वेश्चन ma'am. पूछते हैं, क्वेश्चन किस तरह से पूछते हैं ना, घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं कि नहीं? उल्टा Yes, सुल्टा ma'am. पूछते हाँ, Yes, उल्टा ma'am. सुल्टा पूछते हैं, मैम लॉजिकल पूछते हैं लॉजिकल भी पूछते हैं, और उनको जो बात निकलवानी है तो वो घुमा घुमा के वही एक या क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछते हैं। तो इस टाइम जो स्पोक पर्सन है, मीन्स जो बोलने वाला है, उसको कैसा होना चाहिए, मेंटली कैसा होना चाहिए, स्टेबल, वेल प्रिपेयर वेल प्रिपेयर एंड स्टेबल होना चाहिए। हाँ, कि फॉर एग्जांपल वो कंपनी में काम करते हैं एक, या कंपनी का हम बोलते हैं कि थोड़ा सा सीक्रेट भी कन्वे हो गया, हाँ, तो फिर क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, कंपनी को कहीं ना कहीं लॉस होगा ना, कंपनी को कहीं ना कहीं लॉस Yes, होगा ma'am. कि नहीं? हाँ, तो Yes. जैसे फॉर एग्जांपल Yes, आपको ma'am. सिंपल से एक एग्जांपल दूं कि जैसे हम फूड फैक्ट्री देखते हैं, फूड फैक्ट्री देखते हैं कि नहीं डिस्कवरी में, डिस्कवरी Yes, में Yes, फूड ma'am. फैक्ट्री, या हम बोलते हैं कि जो Yes, ma'am. फैक्ट्री हम बोलते हैं कि जो हीरो होंडा वगैरह ये जो बाइक्स वगैरह बनाते हैं, साइकिल्स वगैरह बनाते हैं, तो
पूरा मीन्स सिनारियो दिखाया जाता है, लेकिन उसका जो सीक्रेट होता है वो बताया जाता है आपको, वो सीक्रेट बताया जाता है थ्रू मीडिया? नहीं, No, क्यों नहीं ma'am. बताया जाता? मैम नो मैम If the secret will be conveyed or if the secret is spread, then the company is going to be lost in somewhere else. समझ में आया? समझ में आया? Yes, ma'am. हाँ, कि हर एक का अपना एक सीक्रेट होता है, so we have to keep the secret as it is. कंट्रोवर्शियल मैटर वहाँ पे डिस्कस नहीं होना चाहिए कि जब हम जर्नलिस्ट को बुलाते हैं। समझ में आया? अभी समझ में आया? Yes, ma'am. यस मैम ओके, Ma'am. हाँ बोलिए। आवाज नहीं आ रही, कौन बोल रहा है? समझ में नहीं है तो मैं फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। Who is that? मैम आवाज अटक रही है। आवाज अटक रही है। ओके, यस मैम। अभी आवाज आ रही है? अभी आवाज आ रही है? Yes, ma'am. हाँ, अभी आगे क्या लिखा है? टू मेक श्योर दैट जर्नलिस्ट write the favorable about the factory, one has to prepare the press handout or press release, which is distributed among the visiting reporters. A press release is written record communication sent out to the press and other media for the purpose of announcing something newsworthy. It is the chief way in which business organizations can transmit the news to the newspaper and magazines. A company can make its own news and get it published through the media. For instance, it could have survey that made by the expert on the market condition and they have the findings released on the print and electronic media. तो जैसे फॉर एग्जांपल किसी जर्नलिस्ट को बुला है तो क्या छापना है, क्या नहीं छापना है, कौन सा न्यूज देना है, उसका हम बोलते हैं रिटर्न रिकॉर्ड होता है पीआर के पास। पीआर के पास होता है कि नहीं? प्रेस हैंडआउट बोलते हैं उसको, हम क्या बोलते हैं? प्रेस हैंडआउट और प्रेस रिलीज। डू अंडरस्टैंड? हेलो, Yes, ma'am. एम आई मैम ऑडिबल? आवाज बहुत अटक रही है आपकी। एम आई Yes, ऑडिबल? ma'am. आवाज अटक. आवाज अटक रही है। अभी आवाज आ रही है क्या ठीक से? अभी आवाज आ Yes, रही है? ma'am. Yes, हाँ ma'am. मैम अभी अब Yes, ध्यान से ma'am. सुनो, मैंने क्या बताया कि अगर प्रेस में हम जर्नलिस्ट को बुलाते हैं तो हमें क्या देना है या क्या नहीं देना है, कौन सा आर्टिकल देना है, कौन सा आर्टिकल नहीं देना है, तो हम क्या करेंगे? जो स्पोक पर्सन होता है क्या करेगा? जितना अच्छा हम बोलते कि जितना भी अच्छा या हम बोलते गुड इमेज है ऑर्गेनाइजेशन का, उसको क्रिएट करने की कोशिश करेगा, वो रिटर्न रिकॉर्ड करेगा। समझ में आया? लिखित, त्याला Yes, आपण म्हणतो ma'am. लिखित, तो लिखित देणार. आणि त्याला आपण काय म्हणतो? रिटर्न रेकॉर्ड कम्युनिकेशन, त्याला आपण काय म्हणतो? प्रेस हँडआउट किंवा प्रेस रिलीज. प्रेस काय म्हणतो? रिलीज. प्रेस रिलीज म्हणतो. आणि ते कुणाबरोबर तो शेअर करत असतो, डिस्ट्रीब्यूट कुणाबरोबर करत असतो? व्हिजिटिंग रिपोर्टर्स बरोबर, की जे व्हिजिटिंग येतात ना, की फॉर एक्झाम्पल जे जर्नलिस्ट येतात किंवा रिपोर्टर्स येतात त्यांच्या बरोबर तो शेअर करत असतो. आलं लक्षात? आणि नंतर काय होतो? Yes, द ma'am. प्रेस रिलीज इज द रिटर्न रेकॉर्डेड कम्युनिकेशन सेंट आउट टू द प्रेस or the other media for the purpose of announcing something newsworthy. कि म्हणजे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है या उसका जो गुड इमेज है या उसमें जो अच्छा चल रहा है वो बताने का कोशिश कौन करेगा? प्रेस रिलीज करेगा, जिसकी वजह से क्या होता है? एक तो मार्केट में उसकी गुड इमेज तैयार होती है, फिर विजिटर्स ज्यादा आते हैं, प्रोडक्ट ज्यादा बेचा जाता है। समझ में आ रहा है? मार्केट में उसकी Yes, ma'am. कंडीशन ज्यादा से ज्यादा बढ़ती है। Yes, ma'am. कि फॉर एग्जांपल जब भी हम एडवर्टाइजमेंट, ये एक हम बोलते हैं कि एक टाइप का एडवर्टाइजमेंट है। ओके, प्रेस रिलीज मीन्स एक टाइप का एडवर्टाइजमेंट है कि फॉर एग्जांपल जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदा जाता है या प्रोडक्ट बताया जाता है तो उसके ज्यादा से ज्यादा क्या बताए जाते हैं? उसके ज्यादा से ज्यादा क्या बताए जाते हैं? लॉस या बेनिफिट वाला फीचर्स बताए जाते हैं, बेनिफिट फायदे. बताए जाते हैं, फायदे बताए जाते हैं। क्यों? कंज्यूमर को अट्रैक्ट करना है। कंज्यूमर हैव टू बी चूजन मीन्स हाँ, कंज्यूमर हैव टू एक्सेप्ट इट। सो ज्यादा से ज्यादा जब भी आप सेल्समैन को देखेंगे या एडवर्टाइजमेंट जब देखेंगे तो आपको उसमें अच्छी 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 बातें बताई जाती है। समझ में आया? समझ में आया? यस मैम ओके, Yes, Yes, ma'am. ma'am. आगे बात करते हैं। यस मैम। एक मिनट,
Okay. The next point is some large business house produce excellent external house magazine printed on the finest quality paper, full of interesting articles with artising the photographs, and although they are very expensive to produce, they do much to enhance the prestige of the company. तो आपको यहाँ पे क्या बताया गया है कि फॉर एग्जाम्पल जो हम बोलते हैं कि सम लार्ज बिजनेस हाउसेस कि हम बोलते हैं कि जितना बड़ा कंपनी होता है या जितना बड़ा हम बोलते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन होता है तो वो हाउस मैगजीन पे वो ज्यादा से ज्यादा अपना हाउस मैगजीन जैसा होता है उस पर ज्यादा खर्च किया करते हैं क्योंकि फॉर एग्जांपल उसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स फोटोग्राफ्स या हम बोलते हैं कि फोटोग्राफ्स दिए जाते हैं क्वालिटी पेपर उनका अच्छा होता है जैसे जर्नल्स मैंने आपको अभी बताया मैं आपको बताऊंगी तो आपको समझ में आएगा तो उसकी वजह से क्या होता है प्रेस्टीज हम बोलते हैं कि कंपनी का प्रेस्टीज मार्केट में बढ़ता है कि फॉर एग्जांपल अगर हम बोलते हैं कि जैसे सिंपल से एग्जांपल देना हो तो मुझे एक सिंपल से एग्जांपल देना हो तो मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल देती हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मुकेश अंबानी ओके मुकेश अंबानी का या बेटे का शादी था तो उसमें जो वो टीवी पे बता रहे थे न्यूज में बता रहे थे एक शादी का कार्ड कैन यू इमेजिन कितने लाख का होगा कैन यू इमेजिन हेलो No, ma'am. नो दैट वन हम बोलते हैं वन वेडिंग कार्ड इज आई थिंक 2 लाख इससे ऊपर होगा डू यू अंडरस्टैंड Yes, ma'am. हाँ प्रेस्टीज बनाने के लिए हाउस मैगजीन किस तरह से या हम बोलते हैं कि जितना आपके पास पैसा होता है तो आप किस तरह से उसको खर्च करते हो एक्सपेंसिव बनाते हो तो वैसे ही यहाँ पे भी ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है या फॉर एग्जांपल जब हम बड़ी बड़ी कंपनी में काम करने के लिए जाते हैं तो फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय के लिए बहुत सर्विसेज भी होता है या हम बोलते हैं कि बहुत सारी फैसिलिटीज भी उनको प्रोवाइड किया जाता है या जहाँ से वो मीन्स जहाँ पे उनका रेसिडेंसी है वहाँ से उनको वहाँ से लेके उनकी कंपनी तक उनको पूरा का पूरा मीन्स घर पे लाने के लिए या घर पे छोड़ने के लिए उनका जैसा फैसिलिटी होता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना एक्सपेंसेस बढ़ाते हैं उसकी वजह से क्या होता है कि हाँ एम्प्लॉय वहाँ पे काम करने आते हैं एम्प्लॉय अच्छी तरीके से काम करेंगे तो फिर क्या होगा उसमें मार्केट में कंपनी का इमेज कैसा होगा प्रेस्टीज कैसा होगा बढ़ेगा समझ में आ रहा है Yes, ma'am. हाँ Yes, ma'am. Yes, ma'am. देन नेक्स्ट पॉइंट इज देखिए यहाँ पे that public relation department of the company also brings out the newsletter which is specialized periodical publication usually concerned with only one topic and caters to the limited readership. The newsletter that sent is to the shareholders and others may get out just twice or thrice in the year and should deal with only with the matters they are likely to interest that shareholders and creditors like market fluctuations in the prices of shares, export, financial position of the company, etc. तो पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट का क्या करता है तो न्यूज लेटर जैसे हम बोलते हैं कि प्रेस रिलीज होता है वैसे एक न्यूज लेटर रेडी करता है जैसे हम बोलते हैं कि पीरियोडिकली हम बोलते हैं कि 6 महीने के बाद या साल में 1 या 2 बार ऐसे न्यूज लेटर रेडी करता है और उसमें पर्टिकुलर हम बोलते हैं कि टॉपिक दिया जाता है और हम बोलते हैं कि वो पर्टिकुलर लोगों के लिए ही बनाया जाता है समझ में आ रहा है हाँ Yes, या ma'am. ना पर्टिकुलर लोगों Yes, के लिए ही ma'am. बनाए जाते हैं जैसे फॉर एग्जांपल द usually concerned with one topic or the caters to the limited रीडरशिप कि हम बोलते हैं कि वो कैटर्स वालों के लिए या पर्टिकुलर टॉपिक के लिए वो बनाया जाता है देन ये जो न्यूज़लेटर होता है वो शेयर होल्डर्स के साथ या उसके साथ उसको शेयर किया जाता है कि फॉर एग्जांपल साल में 1 या 2 बार उसके साथ पर्टिकुलर टॉपिक पे या हम बोलते हैं कि पर्टिकुलर मैटर पे उसको डिस्कस किया जाता है तो शेयर होल्डर्स हो या क्रेडिटर्स हो तो मार्केट में हम बोलते हैं कि मार्केट में प्रोडक्ट की फ्लक्चुएशन क्या है या पोजीशन क्या है या उसके प्राइसेस क्या है देन एक्सपोर्ट्स क्या बोलते हैं फाइनेंशियल पोजीशन क्या है कंपनी की उसके लिए न्यूज़लेटर रेडी किया जाता है
समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. If you don't understand, ma'am. then tell me, I will repeat again. I don't mind. I don't mind. Yes, ma'am. ओके, पहले से देखते हैं कि न्यूज़लेटर क्या है। न्यूज़लेटर क्या होता है कि फॉर एग्जांपल न्यूज़लेटर जैसे हम बोलते हैं कि एक प्रेस रिलीज होता है कि नहीं, जैसे रिटर्न रिकॉर्ड होता है, रिटर्न रिकॉर्ड होता है ना, प्रेस रिलीज, प्रेस Yes, हैंडआउट, ma'am. वैसा ही न्यूज़लेटर होता है कि पर कंपनी का है। तो जैसे हम लेटर लिखते हैं, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर, लेकिन उसका हम बोलते हैं कि फॉर्मेट कैसा होता है, अलग होता है। समझ में आया? और Yes, ma'am. और लिमिटेड लोगों को वो भेजा जाता है। उसके जो पढ़ने वाले होते हैं, न्यूज़लेटर पढ़ने वाले होते हैं, तो वो लिमिटेड होते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल क्रेडिटर्स को दिया जाता है, शेयर होल्डर के साथ उसको शेयर किया जाता है। क्यों शेयर किया जाता है? क्योंकि कंपनी का जो रिलेशन है, इट इज नॉट ओनली इंटरनल, इट इज ऑल्सो एक्सटर्नल। मीन्स कंपनी, हाँ एक्सटर्नल मीन्स कंपनी को अपने इमेज बनाने के लिए, कॉम्पीट करने के लिए बाहर के लोगों के साथ या बाहर की कंपनियों के साथ क्या हालचाल हुई है या क्या रिलेशन रखना या क्या इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना है, तो वो सब कुछ मेंटेन करने के लिए वो न्यूज़लेटर बनाते हैं। कि जैसे फॉर एग्जांपल क्रेडिटर्स हो या शेयर होल्डर्स हो, तो मार्केट में जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता होगा शेयर मार्केट में पैसा आप जब इन्वेस्ट करते हैं तो उसका हम बोलते हैं कि गारंटी नहीं होता है ज़्यादातर, बिकॉज वी डू नॉट इन्वेस्ट that money in the share market. Those who are investing, at least they have the better idea. Do you understand? Do you understand? Yes, ma'am. हाँ, तो जैसे फॉर Yes, एग्जांपल जैसे हम ऑर्डिनरी पर्सन है या आम आदमी है, तो हम अपना पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे? ये जैसे फॉर एग्जांपल आपका पर्टिकुलर इनकम है, तो उसमें सब पर्टिकुलर इनकम या हम बोले कि पर्टिकुलर नंबर ऑफ मनी आप एफडी बनाएंगे या आरडी में डालेंगे या पोस्ट ऑफिस में डालेंगे, या कहीं आपके पास और थोड़ा सा इनकम है तो आप लैंड एक्विजिशन या हम बोलते कि जमीन खरीदने में लगाएंगे या प्रॉपर्टी खरीदने में लगाएंगे। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. लेकिन Yes, ma'am. कंपनी Yes, ma'am. जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी क्या करती है, तो कंपनी शेयर मार्केट में अपना पैसा लगाती है, फिर एक्सपर्ट के साथ उनका मीटिंग होता है या बहुत बड़े बड़े हम बोलते हैं कि प्रोफेशनल्स जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो वहाँ पे डिस्कस हमेशा वहाँ पे उनको इनवाइट किया जाता है, या शेयर की क्या हम बोलते हैं कि कॉस्ट है या वैल्यू है वो डिस्कस किया जाता है। तो इसकी वजह से न्यूज़लेटर थ्रू ऐसे पर्टिकुलर टॉपिक को लेके पर्टिकुलर लोगों को बुलाया जाता है, जैसे क्रेडिटर्स हो या शेयर होल्डर्स हो या एक्सपोर्ट हो। समझ में आया? Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. देन नेक्स्ट पॉइंट इज ऑडियो विजुअल मीडिया। ऑडियो विजुअल मीडिया मतलब क्या? बोथ radio and television are very important media of mass communication in the countries like India. Very few people can read and write, and public relations with the help of this media does not only mean direct advertising but also sponsoring of educational programs, quiz contests, talks or discussion by the scholars and scientists. तो ऑडियो वीडियो मीन्स आपको ये तो ऑडियो वीडियो तो आपको समझ में आ गया होगा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे कम्युनिकेशन की बात हो रही है, तो कम्युनिकेशन के लिए जैसे फॉर एग्जांपल रेडियो है और टेलीविजन है, दे आर मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ मास मीडिया। सो पब्लिक रिलेशन क्या करती है कि डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट नहीं देती है, या हम बोलते कि मीडिया थ्रू डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट नहीं देती है, लेकिन उसके लिए हम बोलते कि फॉर एग्जांपल कंपनी को या हम बोलते कि स्पॉन्सरिंग या कोई पैसे देना, हम बोलते कि क्रेडिटर्स होते हैं, तो वो एजुकेशन प्रोग्राम्स रखते हैं, क्विज कॉन्टेस्ट रखते हैं, टॉक्स रखते हैं, डिस्कशन रखते हैं, और वो किसके थ्रू रखते हैं? स्कॉलर थ्रू और साइंटिस्ट थ्रू रखते हैं, जिसकी वजह से कंपनी का एक कंपनी क्रिएट्स गुड इमेज और द गुड व्हाट वी कैन से गुड प्रेस्टीज ऑफ इट इन द मार्केट। अंडरस्टैंड? Do you understand? Yes, ma'am. समझ में Yes, आया कि ma'am. नहीं आया? It must not, however, be forgotten that while radio and television only carry the message into the homes of millions of the listener and the viewers, and they are also very expensive media.
Audiovisuals could also be used when you find necessary to supplement your oral and written communication. तो यहाँ पे जब हम बोलते हैं कि कंपनी को कुछ एडवर्टाइजमेंट देनी है तो वो डायरेक्टली हम बोलते हैं कि डायरेक्टली जैसे रेडियो थ्रू या टेलीविजन थ्रू तो नहीं देती, लेकिन क्विज कॉन्टेस्ट रखती हैं, एजुकेशन प्रोग्राम्स रखती हैं कि जिसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा जैसे फॉर एग्जांपल साइंटिस्ट हो या स्कॉलर्स हो उनके थ्रू ये क्विज कॉन्टेस्ट रखा जाता है। और उसमें दूसरा एक बात करने वाले कि जैसे हम रेडियो को इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादातर अभी तो रेडियो इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन रेडियो और टेलीविज़न है जिसको देखने वाले नंबर ऑफ व्यूअर्स या मिलियन ऑफ लिसनर्स और व्यूअर्स होते हैं, और उसके हम बोलते हैं कि दे आर वेरी एक्सपेंसिव। अगर वहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल वहाँ पे एडवर्टाइज करनी है या कुछ आपको देना है टेलीविज़न थ्रू, तो आपको वहाँ पे क्या करना पड़ता है, पैसा चुकाना पड़ता है। समझ में आता है? कंपनी पैसा चुकाती है, टेलीविजन में ऐड Yes, देना ma'am. है या रेडियो थ्रू ऐड देना है, तो वहाँ पे कंपनी को पैसा देना पड़ता है। कि जैसे फॉर एग्जांपल आप रेडियो सुनते हैं, एफएम रेडियो, एफएम सुनते हैं, हाँ या ना? No, ma'am. नहीं, No. कभी सुनिए। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे पुराने गाने या जैसे हर एक हम बोलते हैं कि सीरीज के गाने आते हैं ना, जैसे पर्टिकुलर पीरियड के गाने, तो बीच बीच में ऐड भी आते हैं। समझ में आए? बीच बीच में Yes, ऐड ma'am. आता है, तो मीन ये जो ऐड करते हैं कंपनी अपना ऐड करती है, तो वो मीडिया थ्रू या टेलीविजन थ्रू किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ लिसनर्स होते हैं, मिलियन ऑफ लिसनर्स होते हैं, मिलियन ऑफ व्यूअर्स होते हैं। बहुत कुछ कम लोगों को जैसे रेडियो के थ्रू जैसे पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में पता होगा, या टेलीविजन थ्रू बहुत कम लोगों को पर्टिकुलर जैसे हम देखते हैं, पर वो क्या बोलते हैं कि सेल्फी चली देखते हैं, इतना डिटेल में हम नहीं देखते। तो फिर क्या करती है कंपनी, ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियो विजुअल कुड बी यूज ओनली फाइंड दैट नेसेसरी सप्लीमेंट ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन। तो कंपनी क्या करती है, ऑडियो विजुअल देती है ना, ऑडियो वीडियो विजुअल देती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ओरल और रिटन कम्युनिकेशन थ्रू सप्लीमेंट दिया जाता है। मीन्स कंपनी बनाती है और कंपनी उनको प्रोवाइड करती है, रेडियो को और टेलीविजन को। कि फॉर एग्जांपल उनकी कंपनी का ऐड बताना है, तो उनको फिर टेलीविजन को या हम बोलते कि रेडियो को पैसा देना पड़ता है। समझ में आया? समझ में आया? डू यू अंडरस्टैंड? हेलो, डू यू अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. अभी तक Yes, ma'am. हाँ, इसके नोट्स आपको खुद निकालने होंगे। हाँ, इसके नोट्स आपको खुद निकालने होंगे। मैं नोट्स देने वाली नहीं हूँ, क्योंकि when I'm asking your name that no one is replying, that most probably that only particular person are replying, otherwise others they put the mobile aside and they are moving here and there. So at least we can imagine what happening. We are delivering the lectures, but what happening we know that. Do you understand? Yes, ma'am. Okay. ma'am. Yes, ma'am. आपके नोट्स Yes, आपको ma'am. खुद निकालने पड़ेंगे, और जब भी आपको पर्टिकुलर जैसे फॉर एग्जांपल जब आपको नोटिस वगैरह आएगा तभी आपको पता चलेगा कि अभी एग्जाम किस तरह से होने वाली है। तो बी रेडी विद द माइंड। अंडरस्टैंड ना?